everyone, welcome to Crack Grade B. I'm Niharika John Mehra, and in this session today, we are going to practice some questions which are going to help you a lot in RBI Grade B Phase 1. Now, these are objective questions. You get error detection, sentence correction, reading comprehension, fillers, close test, para jumble, match the column, any other vocabulary based questions could be asked. So try to cover each and everything. वेटेज डिफरेंट होता है हर एक डे में एंड वी नीड टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द वेराइटी बट मेक श्योर कि आपके बेसिक स्ट्रांग हो दैट मीन्स वोकाबलरी grammar little bit of knowledge of some things that you have to learn like some idioms and all and reading out of this your paper won't go anywhere. It will be a combination or any one of these domains will be the one जिसके ऊपर questions based होते हैं. So we are going to quickly start with a practice. Timer के साथ आपकी practice होगी. Make sure that you follow the timer and since this is going to be a recorded lecture, आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है. जैसे ही आपका आंसर होता है तभी आप थोड़ा सा आगे करके आंसर देखोगे. Otherwise follow the timer. Okay, do like and share this video. For those who don't know me, I'm Niharika John Mehra. I teach English for competitive exams. I have been teaching for more than 10 years now. तो आपको मेरे बहुत सारे दूसरे useful sessions भी यहाँ पर मिलेंगे. Okay, and make sure to check out our website, our app for more courses and details आपको वहीं पर उसकी मिल जाएगी. This is the first thing that we are going to do today, that is a cloze test. Cloze test is what you get in a paragraph format और उसमें कुछ आपके blanks होते हैं. Since ये थोड़ा बड़ा है, there are 10 blanks. इसका thumb rule है कि आप एक rough reading दो paragraph को along with the blanks and then you start solving blanks one by one. तो मैं आपको अभी यहाँ पे दे रही हूँ 40-45 सेकेंड्स ताकि आप इसको एक बार रफली रीड कर लो. लंबा है इसलिए ज़्यादा टाइम दे रही हूँ और फिर मैं आपको हर एक ब्लैंक के रिस्पेक्टिव ऑप्शंस शो करूँगी. लेट मी गिव यू लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम. लेट मी चेक कुछ कट तो नहीं हो रहा है मेरे इसकी वजह से. ओके नहीं हो रहा है. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ओके, सो फॉर नाउ एवरी अदर ब्लैंक 30 to 40 सेकेंड्स आपको मिलेगा टू थिंक अपॉन. थोड़ा मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसे. 6 ब्लैंक तक यहाँ पे हम करेंगे, फिर आगे मैं आपको चेंज कर दूंगी पैरा. दिस इज फॉर ब्लैंक 1. 5 ऑप्शंस आर देयर. You see there is a word which is highlighted. You feel that if that is correct, no correction required. Otherwise आपको जो भी ABCD में से लगता है वो आप चूज करोगे. आंसर इज ए. आंसर्स एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगी. आई डोंट वांट टू ब्रेक योर रिदम ऑफ डूइंग दी क्वेश्चंस. तो पूरे 10 हो जाने के बाद आई विल एक्सप्लेन.
Answer is C. Third blank. Answer is B. Next one. You can see the word in bold. If you feel that is the answer, no correction required. Answer is D. Next. No correction required. Sixth blank. Next.
last one. Okay, you are done with all 10 blanks. I'll start explaining. Okay, I'll take some other words also which are difficult. So if just in case you don't know the meaning, you can definitely go ahead, note it down, or you can practice them in whatever way you want. So the para starts with um, augmented reality is an enhanced version that is achieved through the digital visual element, sound or other sensory impulse. Okay, other के साथ में other things, other people, we use plural. Another के साथ में you can use a singular, but other के साथ में you have impulse, you have the word Philip and you have the word stimuli जिसकी मीनिंग सेम है. सबका मतलब होता है ऐसा कुछ जो कि एक प्रकार का पुश, एक प्रकार का एनकरेजमेंट देता है, किसी चीज को प्रॉम्प्ट करता है. ओके, बट व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू सी हियर इज अ प्लूरल. स्टिमुलस का प्लूरल स्टिमुलाई होता है एंड दैट्स द ओनली वन जो यहाँ पे आपको सही मिल रहा है प्लूरल अदर के साथ में. ओके, इन इम्पल्स इज ऑल्सो द सडन अर्ज टू डू समथिंग. एकदम से कुछ इच्छा हुई एंड दैट्स हाउ वी डिड समथिंग. सो यहाँ पे वो मीनिंग एग्जैक्टली देता भी नहीं एनीवेज. एंड देन वी हैव द वर्ड that is goad, G-O-A-D, and goading or goad as a verb is to annoy someone, किसी को छेड़ी करना, उसको provoke करना, you know. So of course plural एक ही था. अगर आपको singular plural भी पता होगा तो you know what is the answer. Second one says, amid the rise of data collection and analysis, one of the augmented reality subservient goals. अभी subservient की बात हम नहीं कर सकते. See, we are talking about something important here. Subservient का मतलब होता है जो किसी के नीचे obedient है, secondary है, किसी के नीचे काम कर रहा है. तो secondary, of course यहाँ पर subservient ये वाले words नहीं यूज हो सकते. ओके, देन वी टॉक अबाउट ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग होता है. सो हेल्पिंग गोल्स, ऑक्सिलरी गोल्स भी मीनिंग नहीं देगा. सेंट्रल गोल्स नहीं बोलेंगे हम, सेंट्रल है तो एक ही होना था टेक्निकली. तो प्राइमरी गोल्स जो कि मेन गोल्स में से एक है. ओके, दिस वाज इजी, नॉट गोना टेक मोर टाइम हियर. देन increasing understanding of those features and derive smart and incomprehensible insight. Insight है and we are talking about one other adjective जो कि smart है, it is a positive adjective. तो इसके बाद में भी जो लगेगा वो एक positive adjective लगेगा क्योंकि ये and से connected है. Insight है तो insight कैसी होगी? Accessible है, which we can access, which we can use. इनकॉम्प्रहेंसिबल, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. इनकोहेरेंट, जो कि मिलती नहीं है किसी दूसरे से. ऑब्सक्योर है, छुपी हुई है, कहीं पे क्लैरिटी नहीं है. एंड देन यू हैव द वर्ड कोलोकियल, दैट हैज एंटायरली डिफरेंट मीनिंग. दैट मीन्स कि वो इतनी ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, कैजुअल है, कहीं एक प्रकार के इन्वायरमेंट नेचर को बिलोंग करता है. तो ऐसी इंसाइट भी मीनिंग कुछ नहीं निकलेगा अगर हम पैराग्राफ में लगाएंगे तो.
Then we have the fourth one. Augmented reality continues to develop and become more restrained. Restrained तो उल्टा हो जाएगा. Restrained तो मतलब कि किसी ने किसी को रोक कर रखा है, बांध कर रखा है. When we go for the word baffling, it means कि हमें एकदम perplex कर देने वाला, हमारे दिमाग घुमा देने वाला, something which is not clear, that's why we cannot understand. Mystifying is the synonym of it. तो हमें तो again यहाँ पे it continues to develop, it is developing, so फैलता जाएगा, वो pervasive होता जाएगा, है ना. It's not gonna be restrained or limited. Synonym थे वो. Then, since its conception, marketers and technology firms have had to battle the perception. Perception is what we understand. Okay, so acknowledgement, consequence, इसके जो end result है वो क्या है, इसका appreciation ये हो जाएगा कि क्या बढ़ोतरी आ रही है इसके प्राइस में, which doesn't make sense here. स्क्रम इज अगैन अ टोटली डिफरेंट नाउन. स्क्रम उसको बोलते हैं एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट वी फॉलो, तो वो भी यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रहा है. सो स्क्रम वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा. द वन दैट इज गिवन, दैट वर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. However, there is evidence that, however, say we have a contrast. So when you read the remaining sentences of the paragraph, जिसमें blank नहीं है, you very well understand the tone, and that tone will help you decide your answer. There is evidence that consumers are beginning to derive vague benefits. Vague कोई जब चीज होती है, or you simply use that word as how to say, uh, just as an adjective, that means कि clarity नहीं है. It could be this also, it could be that also. Unclear होती है. तो ऐसे कौन से benefits है जो unclear है? Hazy is the synonym of it. Okay. Then we go to the word enigmatic और queer. Queer पे देखते हैं. Queer means something that is funny. ऐसा वाला odd है जो कि funny वाला odd है. Enigmatic is puzzle कर देने वाला. We cannot understand. So we want again benefits जो कि ऐसे हैं जो हम समझ पाएं. Tangible is something which we can experience, feel. Literal benefits दिख रहे हैं हमको. Tangible है, not just in our mind. So we can have some good actual benefits. उसके लिए हम tangible बोलेंगे. 6 का आंसर tangible था. For example, some early adopters have developed technologies that are designed to recede the consumer shopping experience. Okay. Now, recede होना is पीछे की तरफ आना. हम क्यों बोलेंगे एक्सपीरियंस को रिसीड कराने की? प्लमेट इज एकदम से डूब जाना, एकदम से गिर जाना. अगेन अ नेगेटिव वर्ड, वी डोंट वांट टू यूज दैट. व्हेन वी यूज एग्जैस्परेट करना, कोई आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहा है, इरिटेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो आपको एग्जैस्परेट कर रहा है, सो वो भी हम नहीं बोलेंगे. डिस्पैरेज करना, नाम खराब करना होता है, बीलिटल करना होता है, किसी को नीचा दिखाना होता है. सो ऑल आर नेगेटिव वर्ड्स अपार्ट फ्रॉम द वर्ड डी विच इज एनहांस. तो कंज्यूमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस और बेहतर करना, एनहांस इज द राइट वर्ड देयर. By incorporating augmented reality into catalog apps. Okay, now here again there is no correction required. When we say catalog, okay, that means this is the kind of app और दी इस उस वाली लिस्ट की बात करी जा रही है जहाँ पे एक आर्काइव करके आपने रखा हुआ. इट्स लाइक a calendar, okay, or you can say it is like an index. तो वो रिसोर्स वहाँ पर आपके लिस्ट आपको काम में आ जाएगी. बाकी वर्ड्स यहाँ पे आर्काइव वाला जो वर्ड है वो एग्जैक्टली नहीं आएगा क्योंकि एप्स आपके लिस्टेड एप्स हैं. आर्काइव और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, सो वी डोंट वांट टू टेक इट टू दैट लेवल. फ्लैंज इज हिंदी वर्ड मुझे इसका नहीं पता है, बट आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन यू. सो जैसे कॉलर जैसा एक ऑब्जेक्ट होता है, ओके, एंड वो एक अटैचमेंट होता है दूसरे बड़े सामान का, तो उसको फ्लैंज बोलते हैं. इट्स लाइक दैट. तो वो यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट का नहीं है. ये GAGE वाला गेज है, GAUGE वाला गेज नहीं है. ओके, बट दिस इज वन ऑफ दो स्पेलिंग्स जो कि
इंटरचेंज होकर यूज होती है. ऑल्सो दिस इज अ प्लेज. ओके, दिस इज अ प्लेज. एक ऐसा सामान होता है जो कि हम किसी के हवाले करते हैं कि ठीक है, मैं अपना सामान आपको देके जा रहा हूँ, आपसे पैसे ले रहा हूँ, जब छुड़ाने आऊँगा तो पैसे वापस कर दूंगा. समथिंग लाइक दैट इज गेज, बट ये बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से यूज होता है. तो यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था बाकी वर्ड्स का. कूल. चलो आगे बढ़ते हैं. वी हैव एक्सटेंड इसका आंसर. ऑगमेंटेड रियलिटीज बेनिफिट्स गुड. एक्सटेंड टू दी हेल्थ केयर मतलब कहाँ और ज़्यादा बढ़ सकते. रिज्यूम इज यू लीव एट अ पॉइंट एंड देन वहीं से आप शुरुआत करते हो. कंप्राइज इज किसी में कुछ होना. प्रिजर्व करना इज बनाए रखना. एंड डिफर करना इज हैविंग समथिंग बीइंग डिलेड, पोस्टपोन करना. तो यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर को तक पहुंचा जा रहा है. सो वी आर एक्सटेंडिंग टू दैट प्लेस. So that was again a very simple one. 10th one, hover है. So when they gallop their mobile devices over यहाँ पे important था. गैलप करने का मतलब होता है एज अ वर्ब कहीं पर रश करना, रन करना, स्पीड के साथ में चलना. सो दे रन देयर डिवाइसेस ओवर अ टारगेट इमेज. नो, हवर मतलब कि ऐसे ऊपर वेयर देयर इज अ गैप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. हवा होती है, वहाँ स्पेस होता है, देन यू नो व्हाट इज हवर, लाइक ड्रोन. सो वहाँ पर हो रहा है. व्हेन वी स्करी, स्करी एक वो एक्शन है जहाँ पर जल्दी जल्दी एक पॉइंट से दूसरी जगह जाया जा रहा है, इन द सेंस कि भगाना किसी को या कोई भाग रहा है. ओके, सो दैट्स द. फ्रिस्क करना इज चेक करना. फ्रिस्क करना इज टू स्किप. ऐसे हॉप वाला डांस होता है जो, वो समझ सकते हो. फ्रिस्क करना, फ्रिस्क करने का आपने एक और मीनिंग देखा होगा मूवीज में, जब पुलिस वाले या एयरपोर्ट पे जो चेकिंग होती है, दे चेक यू ऑल ओवर फॉर सम काइंड ऑफ थिंग्स विच आर नॉट अलाउड टू टेक. तो उसे भी फ्रिस्किंग कहते हैं, है ना. एंड देन यू हैव द वर्ड हर्टल. नाउ हर्टल इज racing, just like gallop. You can say it's one of the synonyms, but in a way where it is uncontrollably high speed. तो वो गैलप से भी और ऊंचा हो जाता है हर्टल. वहाँ पे कंट्रोल ही नहीं. ओके, नाउ वी हैव वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स विच इज पैरा जंबल. तो अब आप ये पैरा जंबल का क्वेश्चन करोगे. यू हैव 5 sentences एंड यू नीड टू अरेंज देम in an order where it makes some sense in a proper coherent paragraph. तो इसे रीअरेंज करोगे. आई विल गिव यू 3 minutes टू डू दिस. इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस आपको आते हैं. सो विच इज द फर्स्ट वन, विच इज द सेकेंड वन. अल्टीमेटली यू हैव टू अरेंज एवरीथिंग, है ना. अरेंज करना स्टार्ट करो.
little bit of more time since I was talking to you while I was showing you the question. Answer is B, C, D, C, A, E. How we do this? Listen to me very carefully now for this topic. Um, there are two approaches. They'll help you a lot, and one is inverted triangle, inverted pyramid, inverted triangle, you can call. So when you go with inverted pyramid approach, that means whatever is general, you mention that first, आप उसको पहले बताओगे जो general बात है, and then you narrow down and go into the details. Okay, this is inverted pyramid. And the second one is that you pair. Okay, out of five, even if you get one pair, like these two sentences will come together for sure, then you will be able to simplify the question. ओके ऐसा नहीं है कि 5 sentences से सीधे एक पैराग्राफ बन जाएगा. दैट काइंड ऑफ जंप, इफ यू टेक दैट काइंड ऑफ अ जंप, यू मे फॉल. तो क्या करना है, पहले पेयर ढूंढने की कोशिश करना है, ना कि पूरा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाना है आपको. फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन. सेक्शन 302 स्टेट्स, अभी ये सेक्शन जो है वो स्टेट करता है कुछ, दैट whoever commits murder shall be punished with death or something. पूरा मत पढ़ो, देयर इज अ सेक्शन, उसको एक्सप्लेन करा गया है. ओके, विल सी. In layman's language, that means ordinary language, the unlawful killing of a human being with an evil intention is known as murder. ओके, मर्डर का डेफिनेशन है. मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेशन से हम चीज़ें शुरू करते हैं, और एन इवेंट अगर हो रहा है तो वो कैसे हो रहा, क्या हो रहा, उसका डिटेल एक जनरल बिगिनिंग होता है. सी में एक बहुत ही बढ़िया क्लू है, द सेक्शन. द सेक्शन दैट मीन्स कि इस सेक्शन का नाम मैंने कहीं ना कहीं पहले बताया होगा. ओके, प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर. ठीक है, लेट्स कीप इट ऑन होल्ड. लेट्स सी कौन सा वाला सेक्शन है जो इसके साथ में मिलकर कुछ मीनिंगफुल बनाएगा. लीगल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 302. Section 302 is one of the most important sections of the penal code. D में 302 की बात हो रही है. ओके, 302 का इंट्रोडक्शन है. यू कैन सी फ्रॉम द लाइन इटसेल्फ कि इंडियन पीनल कोड का पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. देन हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे. सो आई हैव टू वे टू गो, है ना. सेक्शन 302 एंड द सेक्शन जो है यहाँ पे आपके पास में ए में और सी में डिटेल है. यू कैन गो ए सी और यू कैन गो सी ए, इसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे बाद में, बट एटलीस्ट ये तीनों साथ में आएंगे. ऑल थ्री ऑफ देम आर एक्सप्लेनिंग अस व्हाट एग्जैक्टली सेक्शन 302 इज. ई पर आते हैं. इन अदर वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्लू अगैन. इन अदर वर्ड्स मतलब हुआ यू हैव एक्सप्लेन्ड समथिंग एंड नाउ यू वांट टू एक्सप्लेन द सेम थिंग इन सम अदर मैनर. तो ये कहीं ना कहीं ई बाद में आएगा. The Indian Penal Code prescribes only two kinds of punishment, death sentence and imprisonment, out of which one shall be imposed on the accused if found guilty. तो बी शुरुआत में हो गया, इनमें से कोई एक रास्ते पे हम आएंगे बीच में, एंड 302 में जो है यहाँ पर ई जो है वो आखिरी में आएगा, बिकॉज इन अदर वर्ड्स है. सेक्शन को समझाने के बाद ही इन अदर वर्ड्स के ऊपर हम जाएंगे, क्योंकि दिस इज वन वे इन विच वी हैव एक्सप्लेन द सेक्शन. अब यहाँ पर अगर आप देखो, ए में बोला है डेथ शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. इसी को अदर वर्ड्स में बोल रहे हैं. तो ए से ई का जो फ्लो है, व्हेन वी गो फ्रॉम ए टू ई, इट मेक्स मच सेंस. इट इज फ्लोइंग वेरी नाइसली. तो हम इस पे नहीं जाके वी विल गो बी डी, बी डी सी ए, जिसमें सेक्शन 302 एक्सप्लेन है. ए में दो प्रकार के पनिशमेंट है एंड ई में उसी को अदर वर्ड्स में एक्सप्लेन करा गया है. वी आर एक्सप्लेनिंग फर्दर. तो दिस इज हाउ वी नो ये आंसर है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या टेक्निक हमने फॉलो करी. देयर आर नो सेट रूल्स टू सॉल्व पैराजम्बल्स, बट
the techniques that we practice in class and some of the things which I keep explaining to you, आप उसको फॉलो करो, वो तरीका फॉलो करो, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो, तो आप डेफिनेटली ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बना पाओगे. Now this is your next question again, para jumble, but here is a twist. You have to find one odd one. Okay, there is one sentence जो कि odd है, and remaining sentences you have to arrange into a paragraph. Please start doing. 3 to 4 minutes I'll give to you guys for this one as well. E is odd. Again, let's see what all things are mentioned. So, built at a cost of nearly itna crore, the 19.5 kilometer corridor serves only around 10K people. So, suddenly, why we are talking about this so called thing? What exactly is thing?
Earlier this month, operations were suspected owing to non-availability of a key spare part, current collector issues CCS, which collects MMRDA has now appointed a new company to supply CCS. MMRDA क्या है? जब तक इसका फुल फॉर्म मेरे पास नहीं है, जैसे CCS का फुल फॉर्म तो आई हैव इट ओवर हियर, बट यू कैन सी यहाँ पर MMRDA है, यहाँ पर MMRDA है, बट ओनली इन C we get the full form. So I have a clue here that only after C आप F और B को बोल पाओगे, because here we have only short forms. This is how we crack it. इतना एज आई सेड अर्लियर कि आप सीधे जंप नहीं करोगे, बट डेफिनेटली CFB में से कोई ऑड भी नहीं है, एंड इट इज गोइंग टू कम दिस वे. ओके, देन वी रीड और ज़्यादा क्या लिखा है. While there have been several issues in the past, a recent decision has provided some hope that the cursed system could be partially salvaged. कैसे बचाया जा सकता है? ओके, कैसे बचाया जाएगा? Provided some hope. Again, if you are saying I have an answer, I have a solution, आपका थॉट क्या आएगा नेक्स्ट माइंड में? ओके, टेल मी व्हाट इज द सोल्यूशन, यही आएगा ना. सो इन दिस केस वी हैव सी एंड F says a new vendor development policy is likely to solve a critical issue. होप है कि हम बच सकें, एंड होप में क्या है वो F में बताया जा रहा है, एंड B में उसको एक्सप्लेन करा जा रहा है दैट नाउ वी आर गोइंग टू हैव दिस अ न्यू पुणे अपॉइंटेड कंपनी दैट इज पुणे बेस्ड इज अब हमको आगे हेल्प करने वाली है. तो FB का फ्लो बराबर बन रहा है. सो CFB ऐसे आ गया. अभी हमको स्टिल देखना है कि क्या क्या सेंटेंसेस हैं, ऑड भी निकालना है. सिर्फ 3 सेंटेंसेस अभी हमको ऐसे मिले हैं जो कि यहाँ पे टेलिंग अस कि कुछ होप है, बचाया जा सकता है. तो वो क्या है? There is perhaps no better example of an urban planning disaster than the Mumbai monorail. यहाँ से पता चल रहा है कि इवेंट क्या है, किसके बारे में बात होगी, क्यों MMRDA को बोला जा रहा है, क्यों CCS एक्सेट्रा की बात करी जा रही है. तो D इज ऑफ कोर्स द ओपनिंग लाइन. इट टॉक्स अबाउट कि अर्बन प्लानिंग डिजास्टर का एग्जाम्पल देखना हो तो इधर देखो. नाउ टेल अस व्हाट काइंड ऑफ डिजास्टर, टेल अस व्हाट एग्जैक्टली हैज गॉन रॉन्ग. सो ए में बताया गया है बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ दिस द कॉरिडोर with respect to monorail. So that's why D और A पेयर है. A में हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं. It serves only 10,000 people daily on an average and is plagued by irregular service and poor frequency. So when we say disaster, we are explaining disaster in sentence A. और फिर जो है CFB तो हमारा बन ही गया था. C में हमने बताया कि अभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए what मुंबई पीपल आर डूइंग. इसमें ऑटोमेटिकली ई जो है आपका ऑड निकल जाता है. ओके, ई इज नॉट एज पर नाउ, इतने में फ्लो में जा ही नहीं रहा है. सो यू हैव DA. ओके, D इज गिविंग यू द ओपनिंग दैट देयर इज अ डिजास्टर. What is the disaster? You can see from the word plagued, irregular, poor. This sentence A is explaining why we are calling Mumbai monorail disaster. तो ये D और A साथ में हो गया. अब ऑथर ने कुछ पॉजिटिव भी बताया है कि बहुत सारे इश्यूज तो हैं, बट एक डिसीजन है जो कि कुछ होप दे रहा है. चलो उस डिसीजन बताओ. F और B में वो डिसीजन को एक्सप्लेन करा गया है. E आपका ऑड हो जाता है. ओके ओके, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली. इसमें क्या करना है, वर्ड्स स्वैप के क्वेश्चन है ये, एंड देन आपको आंसर करना है. गिव यू सम टाइम टू रीड द इंस्ट्रक्शन एंड do the question as well.
Okay. So he offhand on the sidewalk with his hands paying in the pockets. Of course, A में गलती है, B में गलती है. Pockets of his dark overcoat. Overcoat dark हो सकता है. Consumers found, मतलब इतना आपको पता है कि जो C word है वो अपने प्लेस पर फिट हो रहा है. फिर भी थोड़ा पढ़ते हैं. The consumers found the attitude of its staff something. ऑफ कोर्स डी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डी वाले ऑप्शंस जो हैं वो हटा दो. ठीक है, सी वाले ऑप्शंस जो हैं वो भी हटा दो. एंड यू ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ हैंड्स पेइंग इन द पॉकेट्स. जैसे पेइंग मेक्स नो सेंस, तो नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड भी हटा दो. ऐसे आंसर एलिमिनेशन से आपको मिल सकता है. बी इज द आंसर. और यू कैन डायरेक्टली डू दैट. ही ए और ई को एक्सचेंज करो. ही स्टूड ऑन द साइड वॉक. साइड वॉक जो हमारी सड़क के साइड वाला पोर्शन होता है, इट्स ओनली मेंट टू फॉर द पीपल टू वॉक. तो वहाँ पर खड़ा हुआ था, मेक सेंस नो. तो ये यहाँ पे चला जाएगा. ओके. एंड यहाँ पे एटीट्यूड ऑफ इट स्टाफ कैसा था, ऑफ हैंड था. तो यहाँ पे इट वॉज नॉट एज पर दी गाइडलाइंस जो उनके स्टाफ की थी, है ना. जनरली ऑफेंसिव था टू दी बरीड कस्टमर. पेइंग कस्टमर, कस्टमर जो पे कर रहा है. एंड वी कैन से हैंड्स बरीड इन द पॉकेट. पॉकेट में पूरे तरीके से उसके हैंड जो थे वो अंदर पॉकेट के अंदर थे. वो सेंस बनाएगा. तो आपको ये दोनों वर्ड को स्वैप करना है. आपको ऑफ हैंड और स्टूड को स्वैप करना है. आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी. अब तो आप जल्दी कर लोगे क्वेश्चन. ठीक. I outlandish the cheapest price for tried. फॉर वॉट. फॉर के बाद नाउन चाहिए. ट्राइड गलत है. आई आउटलैंडिश नहीं होगा. आउटलैंडिश एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई बहुत ही ऑड है. बाय स्टैंडिंग राउंड. स्टैंडिंग राउंड ऑल फोटोग्राफिक डीलर्स. एक भी शब्द यहाँ पे सही नहीं है. इसी से आपको डायरेक्टली आंसर आ जाता है डी. दैट मीन्स आपको अननेसेसरी सेकेंड सेंटेंस रीड करने की नीड नहीं है. बट इफ यू आर अनश्योर टू चेक, हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है ना. सो आई, ए की जगह ई. आई फाउंड द चीपेस्ट प्राइस. यस, बिल्कुल आपका ए और ई जो है वो बन रहा है. फॉर वॉट. फॉर एनलार्जिंग द फोटोग्राफ. फोटोग्राफ को एनलार्ज करते हैं हम, जूम करते हैं, वो भी मीनिंग आ रहा है. बाय रिंगिंग राउंड ऑल दी फोटोग्राफिक डीलर्स. ठीक है. तो उसने पता किया, लाइक यू नो, लाइक ही कॉल्ड अप ऑल ऑफ देम एंड आस्क्ड फॉर द प्राइस प्रोबेबली. तो यहाँ पे वो भी सही आ रहा है. when he what he tried to follow through. he के बाद का वर्ब आ जाएगा बी की जगह, डी की जगह बी. थ्रू ऑन हिज आउटलैंडिश एजेंडा. एजेंडा नाउन है तो आउटलैंडिश एक एडजेक्टिव आ जाएगा. अजीबो गरीब एजेंडा था. he usually found himself standing alone. अपने आप को अकेला पाता है वो. तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हो इफ यू हैव इनफ टाइम. बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ यू कैन क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay. Answer is no exchange required. Alexander has told friends को बताया बोला, he intends to follow through on a desire to resume her acting career. First sentence makes absolutely complete sense, so no exchange required तो यहीं से आ जाता है. सेकेंड वाला भी चेक कर लो. The drama course gives students a solid grounding in the basic techniques. Techniques basic होती हैं, grounding solid हो सकती है, ड्रामा का कोर्स होता है, so E is your answer. Next one. She worked through the city center. See, when you work through something, you complete doing that thing or you solve a thing. तो यहाँ पे city center को तो वो नहीं कर सकता. तो डेफिनेटली ए हैज़ एन इशू. ए के लिए ई और डी का ऑप्शन है हमारे पास. सो शी वॉकड थ्रू द सिटी सेंटर. वॉक थ्रू होता है तो दैट ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी ए और डी का पेयर पक्के से बनेगा. You have already reached your answer. There you go. Again, आगे देखते हैं. With its drab, grey buildings and depressed. तो that depressed वैसे भी नहीं मिलता यहाँ पे कोई सेंस हमें. She felt, she walked through the center जो कि बहुत ही डल सा था and उसको उसको देख के वो डिप्रेस फील हुआ. तो सी और ई भी आपस में आप एक्सचेंज करके यूज करोगे. द प्रोजेक्ट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल. ए और डी को एक्सचेंज करा था तो प्रोजेक्ट वर्क के बाद में ऑन मेक सेंस है ना. इट मेक्स सेंस कि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट किसके बल पर काम कर रहा है वो बता रहे हो. ईच पर्सन एक्सपीरियंस. ओके, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ में प्रिंसिपल दैट कनेक्टर जैसे यूज हो जाएगा यहाँ पर एंड दैट्स हाउ यू कैन टेक द सेंटेंस अहेड. Okay. She rang up the sale and then pushy under. That gives no sense. Pushy under. So then B के साथ के options आपके D ही हैं. Then surged under something. Several है तो several के साथ हमेशा plural आएगा and एक ही plural है यहाँ पे out of all the highlighted words piles. सो जितने भी पाइल्स ढेर लगे थे पेपर के तो डेफिनेटली यू हैव सी एंड ई जो कि आपस में एक्सचेंज होंगे. यू हैव दैट ऑप्शन हियर ओनली हियर, बाकी ऑप्शन आउट हो जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स बी और डी को भी आप यहाँ पे सर्च अंडर समथिंग के हिसाब से कर दोगे. So she rang up the sale and searched under several piles of paper. Her parents were never pushy. मतलब कि वो ऐसे नहीं थे कि
फोर्सफुली काम करवाते थे. Although they encouraged her acting ambitions from an early age. तो ambitions goals को encourage करा, help करा उनकी बेटी के यहाँ पे. So that makes sense, right? That's it for this session, and we do have live sessions every Friday. कुछ दिन के लिए केवल फ्राइडेज हो रहा है, और आई थिंक नेक्स्ट वीक ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी जस्ट फ्राइडे यूट्यूब सेशन वेयर वी आर practicing RBI grade B phase 1 के objective questions. Okay, make sure to like and share the session, and I'll see you later. बाकी days classes courses के अंदर हो रही हैं descriptive की, so check out our courses as well. Bye bye, take care.